Hello, dear students. How are you? Hoping that you are fine. Today we will discuss about the same chapter motion and video number 5th. Today I am here with some numericals based on acceleration and equation of motion which I have discussed so far. So before to solve these equations, 3 points you must have to keep in your mind when body. Point number 1, when body start from rest, then its initial velocity that is known as u will 0. Point number 1. Point number 2, when body comes to rest, then its final velocity v equal to 0. Point number 3, if body moves with uniform acceleration, then acceleration a become 0. These 3 points you might have to kept in your mind. What is first point? When body start from rest, then its initial velocity u will 0. जब कोई वस्तु रुकी हुई हो और फिर चलना प्रारंभ कर रही हो, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो अभी चली नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. दूसरा पॉइंट, when body come to rest, then its final velocity v become 0. जब कोई वस्तु चलकर रुक रही हो, कोई गाड़ी चलकर रुक रही हो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तीसरा पॉइंट है, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसका एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये 3 बातों को माइंड में रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको देखते हैं. न्यूमेरिकल फर्स्ट है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find its acceleration. क्या क्या दिया है? बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड. फर्स्ट क्वेश्चन है, u दे रखा है आपको. इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 60 km per hour. इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. दैट्स वाई 60 किलोमीटर इक्वल टू 60 इंटू 1000 पर आवर. पर आवर मीन्स 1 आवर. 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड. दैट इज 0 0 cancel, it will come 60 into 10 upon 36. 60 into 10 into 36, 600 upon 36. इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आता है वो देखेंगे. दूसरा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर. फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 km
इनिशियल 80 था ना, इनिशियल 80 था, 80 हो जाएगा, 80, 80 here also 80, 80, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80. Now final velocity 60 km per hour, that is 60 into 1000 upon 60 into 60. It will 0 0 cancel, that is 60 into 10 upon 6 6 is 36, that is 600 upon 36. It will come out 22.22 meter per second. It will come out 16.67 meter per second. What we have to calculate? Acceleration A. We know that A equal to V, that is final velocity minus initial velocity u upon t. Final velocity is 22.22. 22.22 minus 16.67 upon 5 seconds. It will come out 5.55 upon 5, that is 1.11 meter per second square. Understood? Look at board once again. See, initial velocity we have provided, that is called u, 80 km per hour. We have to convert in meter per second. For doing so, we will multiply km with 1000, because we know that 1 km equal to 1000 meter, and hour will be converted into second. For that, we know that 1 hour equal to 60 into 60 second. So 80 into 1000 upon 60 into 60, that will come out to 22 meter per second. Km per hour is converted into meter per second. Now second, final velocity, that is called v. V is given 60 km per hour. We will convert unit km per hour into meter per second. For doing so, same thing apply. 60 into 1000 upon 60 into 60, it will come out to 16.67 meter per second. Now we have to calculate what? Acceleration. Acceleration A equal to final velocity v minus initial velocity u upon time taken t. Final velocity 22.22 meter per second and initial velocity 16.67 upon 5. It will come out to 1.11 meter per second square. Please note all things. Then after moving towards the second question. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इरेज नहीं कर रहा हूँ मैं ताकि आप नोट करें इसको, बगैर इसकी कहानी नहीं बनेगी आपकी. ये 3 पॉइंट. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन कर रही है. उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स वी. यू तो जीरो हो गया. यू जीरो क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है, उसकी इनिशियल स्पीड अभी तो चली नहीं है, तो यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए यू जीरो है. वी दे रखा है इसने 40 km पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं. 40 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. आपको एक चीज बताऊं मैं, जहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो आप, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो. ये सब करने की जरूरत नहीं है. वो इसलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये क्या है आपका? 40 इंटू 10 अपॉन 36 आया. तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे. 2 5 जा एंड 2 18 जा.
36। तो जब कभी भी किलोमीटर पर सेकंड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, शॉर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 5/18। ओके, हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है, ए निकालना है। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आपका u तो 0 है, t कितना है, t है आपका 10 मिनट। 10 मिनट 10 मिनट का मतलब हुआ 10 इंटू 60, दैट इज 600 सेकंड, 600 सेकंड्स। तो ये वैल्यू इसमें रख दोगे, इसको सॉल्व करते हैं आप तो इसकी वैल्यू आती है 11.11 मीटर पर सेकंड आती है। तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू 11.11 माइनस 0, यू कितना है, 0 है, 0/600। तो इसका फाइनल आंसर आपका आएगा कैलकुलेट कर लेना आप 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है u0, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है 11.11। तो एक्सेलरेशन ए हमें कैलकुलेट करना है, तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, we have already calculated, that is 11.11, and u is 0 upon 600। 10 मिनट दिया था, मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकंड। 600 फाइनल आंसर इज, एक्सेलरेशन इज 0.0185 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km पर आवर। ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगाए गए हैं ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, स्पीड कम हो जाएगी। ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यही चीज़ समझने की है यहाँ पर। फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाने के कितनी देर बाद गाड़ी रुक जाएगी। तो आपको ब्रेक रुक रही है गाड़ी, तो फाइनल वेलोसिटी कम टू रेस्ट में v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0। u इक्वल टू आपको दे रखा है, u इज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर, 90 km पर आवर। कन्वर्ट करिए इसको मीटर पर सेकंड में, 90 इंटू 5/18। मैंने बताया था अभी 5/18 आएगा, क्यों, किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 60 इंटू 60 करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो 5/18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है हमें, हाउ फार विल इट गो, हाउ फार विल इट गो, ये निकालना है। तो हम जानते हैं एस निकालना है, एस हमें निकालना है। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, थर्ड इक्वेशन है मोशन की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s निकालना है ना, s को इधर ले लेंगे। तो वी स्क्वायर कितना है आपका, वी तो 0 है, 0 माइनस यू स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए है
माइनस 0.05, इस माइनस को यहाँ ले रहे हैं हम, 0.5, 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। 625, 5 to the 10 means 1/1, दैट इज 625। क्या निकाला हमने? एस निकाला। एस माने डिस्टेंस, मीटर आ गया। ठीक है, इस रंग से कर लेंगे। देखो, V is 0, U is 90 km/h. We have to convert into meter per second. For doing so, we multiply it 5/18 with 5/18. It will come out to 25 meter per second. We have to calculate S. S is distance. What S? S is distance. Distance. S. Applying third equation of motion, V square equal to U square plus 2AS. We have to calculate S, so we take S from this side, then S equal to V square minus U square upon 2A. V is 0, U is 25 upon 2 into 0.5. Distance covered is 625 meter per second. Next question. A trolley while going down an inclined plane has acceleration of 2 cm per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? 3 seconds after the start ये दिया है, तो मतलब अभी स्टार्ट नहीं है, तो u क्या हो जाएगा? 0। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन, फोर्थ वन। u is 0 because it is in rest, and v you have to calculate. Now v equal to u plus at, applying first equation of motion. V equal to u plus at. V equal to u is 0, a is 2 cm, 2 into 3 times v equal to 6 cm per second. Very simple. U is 0 because it is in rest. V we have to calculate. We know the first equation of motion, v equal to u plus at. Applying this formula, so v will come out 6 cm per second. नोट कर लीजिएगा इसको, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, शायद ये है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। क्या है? A racing car has uniform acceleration. A is given 4 meter per second square. What distance will it cover? S is, you have to calculate. S is distance निकालना है, and cover in 10 seconds. T is provided to you 10 seconds. 10 seconds. अब S निकालना है, डिस्टेंस S निकालना है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इतना है, डिस्टेंस विल कवर इट 10 सेकंड आफ्टर। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे निकल जाएगा हमारा। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S निकालना है, S U 0 है इंटू टी प्लस हाफ A is 4 into T is 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर, T स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो S इक्वल टू U तो 0, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस हाफ 400 इंटू 400 200। सो इट इज S इक्वल टू 200 मीटर पर, क्या निकाला? डिस्टेंस निकाली ना, 200 मीटर आ जाएगा। S इज 200 मीटर। सिंपल सा था। रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड? 10 सेकंड चलने के बाद कितनी दूरी तय करेगी? तो ए दे रखा है हमें, एस हमें निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, टी दे रखा है समय 10 सेकंड। Applying the second equation of motion, S equal to ut plus half AT square. Putting the values, S will come out to 200 मीटर। ओके, तो ये प्रैक्टिस करें, कुछ न्यूमेरिकल्स लेके फिर मैं आता हूँ।
ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके।